So, good evening, all of you. Let us continue the chapter we have started last time. It's about the mechanical properties of fluids. तो लास्ट टाइम हमने सरफेस टेंशन का कंसेप्ट देखा था और एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा था. हमने we have derived the relationship between the surface tension and surface energy, and also we have seen that the surface tension and surface energy are connected by a simple equation, that is surface energy is equal to surface tension into change in area. And also we have derived the relationship between the surface tension and the force. So let us continue the same. एक बार दो तीन बातें जो है वो लास्ट टाइम हमने जो की थी उसके ऊपर बेस्ड थोड़ा रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. तो ये हमने देखा था लास्ट टाइम. द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन. तो ये force per unit surface tension is actually defined as the force per unit length. अभी इससे ही हमको एक फॉर्मूला और मिल जाता है. इसको थोड़ा रीअरेंज अगर करेंगे तो उससे हमको मिल जाएगा F is equal to T into L, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्चुअली. तो अगर देखा जाए तो the force due to surface tension is always equal to the surface tension times the length of the solid which is in contact with the liquid. For example, if suppose we have a container like this, suppose एक कंटेनर के अंदर हमने ये suppose लिक्विड का सरफेस है और यहाँ पे अगर हमने एक रिंग लिया है, ये चलो एक डिस्क लिया है, डिस्क हम समझ सकते हैं आराम से. इस टाइप का डिस्क इसके अंदर रखा हुआ है.
सेम वैसे ही जैसे अगर कोई कॉइन जो है वो हमने इसके अंदर रखा हुआ है, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि द टोटल सर्कमफरेंस ऑफ दिस डिस्क will be there in the contact with the liquid, and hence we can say that the total force due to surface tension in this case actually will be equal to the surface tension of this liquid multiplied by the length of this liquid which is there in contact with this solid, which is going to be 2 pi r. तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे 2 pi r. This 2 pi r will be actually the length here. तो ये जो length है यहाँ पे, तो वो length actually 2 pi r के बराबर रहेगा, no doubt. Next we can talk about the, suppose there is a ring here. तो अगर यहाँ पे एक ring हमारे पास है, मान लो कि same situation and the same container, and suppose there is a ring there is in contact with the liquid. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, तो हम समझ सकते हैं आराम से कि देयर विल बी अ रिंग सपोज इन कांटेक्ट. तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि वाटर के कांटेक्ट में कोई रिंग रखा जाता है इस तरह से. सपोज ये वाटर है, दिस इज वाटर हियर, एंड सपोज देयर इज अ रिंग हियर. तो ये समझो रिंग है ऐसे. अभी क्या है ना कि रिंग में और डिस्क में ये बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रिंग जो है वो अंदर से खाली होता है, तो यहाँ पे अंदर वाटर रहने वाला है, और इसकी वजह से यहाँ पे होता है ऐसा है ना कि the total length of this ring in contact with the liquid, if we see from the top, अगर हम ऊपर से इसको देखेंगे तो हमको ऐसा कुछ दिखाई देगा. इसमें ये सपोज वाटर का सरफेस है और ये रिंग है यहाँ पे, so this is going to be the ring here, and we'll see clearly that there will be water inside and there will be water outside also. तो यहाँ पे बाहर में भी वाटर है और अंदर भी वाटर है, और उसकी वजह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं आराम से कि the total circumference which is there in contact with the liquid is actually double of the circumference here, and that's why we can say that the force actually is going to be equal to surface tension, that is the surface tension of liquid, multiplied by 4 pi r. ये हमको याद रखना है. 4 pi r क्यों यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये अंदर का सर्कमफरेंस प्लस बाहर का जो सर्कमफरेंस है वो पूरा ऐड होके हमको ये 4 pi r मिल रहा है, and this will be done only when the ring is in contact with the liquid. But if suppose there is a disc which is floating on the liquid, then we'll use this formula simply, F is equal to T into 2 pi r, no doubt. And next thing is that if suppose there is a container and suppose we have a this frame, rectangular frame or rectangular plate which is there in contact with the liquid. तो सपोज ये सरफेस के ऊपर अगर यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फ्रेम अगर कांटेक्ट में है वाटर के, ये देखो इस तरह से, ये देखो ये इस टाइप का अगर रेक्टेंगुलर एक फ्रेम, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट अगर वाटर के कांटेक्ट में है, just like a postcard or something like this, then we can see clearly that here
Okay, so let us go to the screen once again. So we are about to discuss that if suppose we have a plate like this, तो अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट हमारे पास है जिसका लेंथ L है और इसका सपोज ब्रेड्थ जो है वो B है मान लो, तो फिर उस केस में हम देख सकेंगे आराम से कि जो टोटल जो लेंथ है इस पूरे प्लेट का जो लेंथ कांटेक्ट में है वो एक्चुअली रहा होगा 2L plus 2B, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये L है यहाँ पे, so at the same time we can say that this is also L, and at the same time this is going to be B on D, and because of that we can say that force due to the surface tension is actually equal to the surface tension into the total length that is in contact. तो ये टोटल प्लेट का जो पूरा लेंथ है जो एज है उसका कांटेक्ट में, तो वो बन जाएगा 2L plus 2B. ये एक्चुअली फॉर्मूला बनेगा फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट यू कैन से. बट अभी सपोज अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट के बजाय अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जस्ट अ फ्रेम, सो यू कैन सी सपोज देयर इज द सेम डायग्राम के अंदर हम समझ सकते हैं सपोज कि इसका लेंथ है okay, and suppose we have a frame actually, not a plate but frame. अब देखिए ठीक से कि फ्रेम में और प्लेट में क्या डिफरेंस होता है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फ्रेम जो होता है वो अंदर से खाली होता है, तो इसलिए यहाँ पे अंदर इधर भी लिक्विड होगा जरूर, तो इसकी वजह से हम देख सकेंगे. अगर इसको हमने ऊपर से अगर देखा तो ऐसा कुछ हमको दिखाई देगा जिसमें एक रेक्टेंगल जो है वो बाहर तरफ रहेगा इस तरह से और दूसरा रेक्टेंगल जो है वो उसके अंदर रहेगा इस तरह से. तो फ्रेम अगर कांटेक्ट में है लिक्विड के तो उस केस में क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालने के लिए, तो ये हमको देखना है. The length of this frame is going to be L again and breadth is B actually. So we can say that the force due to surface tension will be equal to surface tension into the total length that is in contact. But अभी अगर देखेंगे ठीक से तो टोटल लेंथ कांटेक्ट में कितना है, तो यहाँ पे अंदर भी लिक्विड है और बाहर में भी लिक्विड है, तो उसकी वजह से टोटल लेंथ जो कांटेक्ट में है वो एक्चुअली कितना बनेगा समझ सकते हैं ठीक से. ये जो L है तो ये L और ये L मिला के 2L इधर ही हो गया और वापस यहाँ पे L और यहाँ पे L करके ये 2L वापस यहाँ पे हो गया, तो एक्चुअली इट विल बी 4L एंड हेंस हियर आल्सो 4B. ये पूरा मिला के जो है 4L plus 4B, मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि the total length that is in contact will be actually 4L plus 4B, and that is to be multiplied by surface tension so as to get the total force due to surface tension in this case here. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. So this is going to be the formula for the force and surface tension. The relationship between the force and surface tension. In the same way, we can also talk about the relationship between surface energy and surface tension. As we have seen last time, that we have seen that the change in surface energy, delta U, we can say, is always equal to the surface tension into change in area, where delta A stands for change in area and delta U actually stands for change in surface energy. If you want to find out the total surface energy, U can denote it by, will actually be equal to surface tension into total area, we'll say. So अगर हमको टोटल एरिया टोटल सरफेस एनर्जी अगर चाहिए तो उसके लिए हमको टोटल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, जबकि अगर चेंज इन सरफेस एनर्जी चाहिए तो उसके लिए जरूर चेंज इन सरफेस एरिया कंसीडर करना पड़ेगा. सो ये फॉर्मूला यूज करके हम कई सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड कई फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं. सबसे पहला कि अगर सपोज हमारे पास एक ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, सपोज वी हैव दिस लिक्विड ड्रॉप व्हिच इज टू बी फॉर्म्ड. तो अगर ये लिक्विड ड्रॉप हमको फॉर्म करना है तो उस फॉर्मेशन के प्रोसेस में कितना एनर्जी यूज होता है वो अगर हमको चाहिए तो हम समझ सकते हैं आराम से. तो ड्रॉप के फॉर्मेशन के लिए लगने वाला एनर्जी या ड्रॉप के फॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या पड़ने वाला वर्क डन, तो
वर्क डन और एनर्जी जैसे कि हम जानते हैं सेम ही होते हैं, तो वर्क डन इन फॉर्मेशन और of a drop or the energy required to form the liquid drop will be actually equal to surface tension into change in area. अब यहाँ पे चेंज इन एरिया के बदले क्या आएगा, तो हम देख सकते हैं पहले वो ड्रॉप था ही नहीं और वो फॉर्म हो गया, जिसका रेडियस मान लेंगे आर है सपोज। तो ऐसे केस में आर रेडियस का ड्रॉप फॉर्म करने के लिए तो उतना ही सरफेस एनर्जी लगेगा जितना सरफेस टेंशन टाइम्स उसका खुद का एरिया जो भी होगा। तो इसका पूरा एरिया कितना है वो अगर हम सपोज पता करते हैं तो हमको पता चलता है इट्स गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ अ स्फीयर, रिमेंबर। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ स्फीयर कैन बी रिप्लेस्ड हियर एंड वी कैन गेट दिस सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर इनटू टी। So 4 pi r square t. This is going to be the formula for finding the work done in formation of a liquid drop. But at the same time, if suppose we want to increase the radius of a liquid drop from R1 to R2, मान लो कि पहले ये ड्रॉप जो है वो पहले ऐसा था, R1 उसका रेडियस था सपोज, ये R1 रेडियस वाला लिक्विड ड्रॉप है। सपोज इट इज कन्वर्टेड इनटू अ बिगर ड्रॉप विच इज ऑफ रेडियस R2 सपोज। अब ये सपोज बड़ा ड्रॉप बन गया जिसका रेडियस मान लो R2 है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है या वर्क डन इन दिस प्रोसेस है वो निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, तो सिंपली सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका एरिया माइनस इसका एरिया हमको करना पड़ेगा, जो कि हमको यहाँ पे मिल जाएगा। जो दोनों स्फीयर्स ही है तो स्फीयर्स का एरिया का तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। So we can use it here and get that 4 pi r2 square minus 4 pi into r1 square. So if we simplify this further, then we can get this work done or change in surface energy in the process of increasing the area of a drop to be equal to 4 pi t in the bracket r2 square minus r1 square. So that is simple thing we have to understand. The next is about the, if suppose we have a spherical bubble, soap bubble instead of a drop.